Many of us are preparing for the competitive exams. हम में से बहुत से ऐसे हैं जो competitive exams की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन somewhere we are lacking in the exam. होता है हम में से बहुत से लोग काफ़ी बार ट्राई करते हैं एग्जाम बट क्लियर ही नहीं हो पाता है. So why we are not able to clear? That means where we are lacking. That means somewhere we are lacking is the understanding of syllabus. जो फर्स्ट लैक्यूनी हो सकता है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस हो सकता है. So it's very important know that the thing which we are studying, the thing which we are reading, the thing which we are learning is based on the syllabus or the not. हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है, एक सिलेबस होता है. इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट दैट सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट हमें इस सिलेबस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. So today we are going to understand the syllabus only, that it is related with the teaching syllabus. Those who are preparing for the CTET, TET, KVS, these exams, the syllabus is for those candidates. So let's begin with the syllabus. Welcome to the Fight to Fear. The person who is presenting this syllabus explanation is Ashrafia Sheikh. So let's start. In this we are having the 5 sections we will be having. This one is the paper 1 syllabus is for the paper 1. 5 out of 5 topics we are having. First one is child development and the pedagogy. First we need to understand that what the term is. ये होता क्या है child development and pedagogy? You all have those who are preparing for the teaching test, teacher eligibility test. They might have done their B.Ed, their D.Ed. That has been done. So उसमें हमने क्या पढ़ा है? चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा है, पेडागोजी पढ़ा है. चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है? इट्स अ डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. जो चाइल्ड है, जो बच्चा, वो किस तरह से डेवलप करता है. एट पर्टिकुलर एज वी वर ऑल्सो द चाइल्ड. हम भी बच्चे थे. हमारा डेवलपमेंट किस तरह से हुआ? हमने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स देना किस तरह से सीखा. हमने चीज़ें किस तरह से धीरे धीरे लर्न की एज पर आर एज. दैट ऑल थिंग्स विल कम अंडर द चाइल्ड डेवलपमेंट ओनली. No need to go for the extra burden. Just need to go through all the things which we are doing, which we have done. So let's start in child development. First part is of the development of child. If you will done with this one term only ना, सिर्फ इतना भी part कर लिया ना, easily you will grab 85 to 90%. Easily you are going to grab these marks. So for first section is of 30 marks. In this child development, here is the principle of development. संतान का विकास किस तरह, कौन से प्रिंसिपल्स है डेवलपमेंट के, वो हमें यहाँ पर देखना है. फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हुए डेवलपमेंट में. बायोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, सोशल फैक्टर्स आते हैं. नेक्स्ट है हमारा डायमेंशंस ऑफ द डेवलपमेंट. कौन से उसके डायमेंशंस थे. नाउ डायमेंशंस में क्या क्या जाएगा हमारा डायमेंशंस में आता है फिजिकल, मॉरल, हेरिडिटी डायमेंशंस, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव. all these things will come under the dimensions. Now the individual differences, व्यक्तिगत मतभेद. हम every individual is the different. Yes, we have studied already. हम सब अलग अलग होते हैं. हमारे अंदर हर एक अलग अलग क्वालिटी होती है हम सब में. That is come under the individual differences. Next is the development of personality. किस तरह से personality develop होती है. As per the age, as the child grows, how his personality develop. हमारी personality किस तरह से develop हुई थी. Now I am speaking with in front of you like this. Was I able to speak when I was the 8-year-old, 9-year-old? No, na. So that how my personality, our personality develops. That is the development of personality. Now the next is individual differences is done. Development, adjustment, behavioral problems and the mental health. समायोजन, व्यवहार संबंधी समस्या और मानसिक स्वास्थ्य. किस तरह से चाइल्ड एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करता है, किस तरह से उसका बिहेवियर चेंज होता है, बिहेवियर में डेवलपमेंट किस तरह से होता है, प्रॉब्लम एंड मेंटल हेल्थ किस तरह से डेवलप होती है. दैट इज कम अंडर द adjustment. Next is the methods and the approaches of child development. What are the various methods? There are various methods are there. Experimental, cross, observation. Various methods are being there actually for the child development.
जो नेक्स्ट है हमारा वो है अंडरस्टैंडिंग लर्निंग। अब लर्निंग को किस तरह से हमने अंडरस्टैंड किया वो आएगा इसमें, इसका कंसेप्ट, नेचर और द प्रोसेस इज गिवन। आउटपुट आता है इसमें, इसका इनपुट आउटपुट क्या रहेगा वो आएगा। नाउ द फैक्टर्स ऑफ लर्निंग, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो लर्निंग पर अफेक्ट करते हैं, पर्सनल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये सब आएगा हमारा फैक्टर्स ऑफ लर्निंग में। नाउ द अप्रोचेस टू लर्निंग, नेक्स्ट इज द अप्रोचेस टू लर्निंग। इसमें आता है कुछ थेरीज आती हैं, बिहेवियरिज्म की थेरी आएगी जो स्किनर एंड पावलोव ने दिया था। उसके बाद कंस्ट्रक्टिविज्म थेरी आएगी जो पियाजे एंड वाइगोत्स्की ने दिया था, और कोहलबर्ग, कोफला, इन्होंने जो थेरीज दी थी वो हमारी अप्रोचेस टू लर्निंग में आएगी। इसमें से 2 to 3 मार्क्स तो आता ही है अप्रोचेस टू लर्निंग में। नाउ द डायमेंशंस ऑफ लर्निंग, इस जो डायमेंशंस थे, 3 डायमेंशंस ऑफ लर्निंग आर द cognitive, affective and the psychomotor. These 3 dimensions you have to learn first. Then next is the transfer of learning. How the learning is transferred, how learning transfer from child to child, किस तरह से बच्चा अपनी लर्निंग को ट्रांसफर कर रहा है। 3 टाइप्स है उसके, पॉजिटिव, निगेटिव एंड दी जीरो। ये था हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। द नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड वन पार्ट विच इज द पेडागोजिकल कंसर्न, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट है ना, 50% मार्क्स यू आर गोना ग्रैब फ्रॉम दिस वन पार्ट ओनली। इसमें पहला आता है चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवर्स कंटेक्स्ट। जितने चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड जो होता है, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। जो चिल्ड्रन होते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। इसमें हमारा जाता है अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, मीन्स कुछ स्पेशल नीड्स के चाइल्ड होते हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन आएगा जो, वो हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेडागोजिक मेथड। पेडागोजिक के जो डिफरेंट मेथड्स है उसको अंडरस्टैंड करना कितना इम्पॉर्टेंट है, दैट्स ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज द paradigms of organizing learning. It's very important, हाँ, paradigms of organizing the, इसमें whether we are organizing it as a teacher centric, student centric or the subject centric, वो आएगा हमारा इसके अंदर। उसके बाद टीचिंग एज प्लान्ड एक्टिविटी, टीचिंग एज अ प्लान्ड एक्टिविटी, हमने जो टीचिंग की है उसको किस तरह से प्लान किया है, उसके टूल्स कौन कौन से यूज़ किए, मेथड्स कौन कौन से यूज़ किए, दैट कम्स अंडर द टीचिंग। नाउ फेजेस ऑफ टीचिंग, वी ऑल आर नो द वेरियस फेजेस ऑफ टीचिंग आर देयर, दैट विल कम। लर्निंग रिसोर्सेज, अब लर्निंग रिसोर्सेज कौन कौन से, हम कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं एज अ लर्निंग, वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट में हमने क्लासरूम को किस तरह से मैनेज किया हुआ है वो सारा इसमें आता है। रोल ऑफ द स्टूडेंट आएगा इसमें, रोल ऑफ द टीचर आएगा, ये सब इसमें आ जाता है। फिर नेक्स्ट इज असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट असेसमेंट एंड द इवैल्यूएशन। 3 to 4 क्वेश्चंस इसमें से भी आ ही जाते हैं असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में से। उसके बाद NCF 2005 एंड RTE एक्ट। नाउ रिमेंबर वन थिंग, ये जो NCF 2005 एंड RTE है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 के अकॉर्डिंग, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है। सो इंस्टेड ऑफ रीडिंग होल चैप्टर, जस्ट गो थ्रू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट विच पॉइंट्स आर द इम्पॉर्टेंट। नाउ विल कम टू द लैंग्वेज वन विच इज द इंग्लिश। सेकेंड लैंग्वेज आता है, इसमें हमारा आता है कंटेंट पर 20 मार्क्स होता है, 24 इज जस्ट अप्रोक्सीमेट मार्क्स इज 24। उसके बाद पेडागोजी पर आता है 10 to 12 मार्क्स, 10 to 12 मार्क्स का हमारा पेडागोजी पर क्वेश्चन आएगा। 20 मार्क्स का हमारा आएगा कंटेंट में पैसेज आता है, पोएम आती है, उसमें से ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जाएगा, टेंसेस जाएगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, आर्टिकल्स, क्लॉजेस, जो हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती है शायद, विच वी ऑलरेडी हैव स्टडीड इन आवर स्कूल होल लाइफ। वी आर जस्ट स्टडिंग इन लैंग्वेज, वी आर स्टडिंग दिस ग्रामर्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वी ऑल नो, फ्रेजेस, कॉम्प्रिहेंशन। सो जो मेन पार्ट होता है ना स्कोरिंग का, दैट्स द लैंग्वेज एंड द CDP।
पेडागोजी में आएगा हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, LSRW जो हमारे आता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड दी राइटिंग। देन अप्रोचेस, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ द टीचिंग, वेरियस अप्रोचेस मेथड्स जो होते हैं टीचिंग के वो आएगा। डायग्नोस्टिक जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे CDP में जो कुछ भी कवर हुआ है वो सारा के सारा आता है हमारा लैंग्वेज में। जो भी लास्ट के पार्ट्स बचे, लास्ट के सेक्शंस बचे, सारा सेक्शन हमारा इसमें ये इसमें पेडागोजी का आता है। 10 to 12 क्वेश्चंस तो आते हैं पेडागोजी के हर सेक्शन में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पेडागोजी का लिया ना 85 to 90% मार्क्स जस्ट गोना ग्रैब। मैथमेटिक्स देखते हैं। मैथमेटिक्स में जो है हमारा नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में हमारा चला जाता है, इसमें काफ़ी सारा आएगा हमारा होल नंबर, प्राइम नंबर्स, ये सब हमारे फंडामेंटल आएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस आएंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ चला जाएगा हमारा नंबर सिस्टम में। उसके बाद आता है फ्रैक्शन, इसमें आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो भी फ्रैक्शंस के टाइप्स है वो सारे फ्रैक्शंस आते हैं। उसके बाद आता हमारा अरिथमेटिक्स में जाएगा हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब आ जाएगा हमारा अरिथमेटिक में। फिर आता है ज्योमेट्री में सारा शेप्स, जितने भी शेप्स से रिलेटेड है वो आज चला जाएगा हमारा ज्योमेट्री में। देन मेजरमेंट आता है, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, ये सब चला जाएगा हमारा मेजरमेंट में। टाइम। नेक्स्ट इज द डेटा एप्लीकेशन, इसमें बार ग्राफ आता है, डेटा प्रेजेंटेशन किस तरह से होता है हो जाता है। इससे इतना क्वेश्चन आता नहीं है, मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो नंबर सिस्टम से आते हैं, फ्रैक्शंस से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, अरिथमेटिक से भी आते हैं क्वेश्चंस। फिफ्थ वन इज़ द इन्वायरमेंटल स्टडीज़, सेम होता है, इसमें कंटेंट के लिए 20 मार्क्स का कंटेंट होता है एंड 10 to 12 मार्क्स, 18 to 20 मार्क्स का हमारा कंटेंट रहेगा एंड 10 to 12 मार्क्स का आता है हमारा पेडागोजी। इसमें फर्स्ट है हमारा आवर बॉडी, दिस इज द सेम फॉर एवरीवन, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द पार्ट 1 पेपर 1, दोज हु आर गिविंग द पेपर 1, फॉर देम this thing is the same, everyone is having the EVS and the maths, everyone have to attempt these questions related with EVS and the maths. If you are giving the paper 2, at that time you are having your special subject, those who are from the science field they will be having the subject science and maths, and those who are from the BA BCom they will be having the social studies. So here first is our body, health, cleanliness, इधर हमारा सारा आ जाएगा, एक्सटर्नल इंटरनल बॉडी पार्ट्स आ जाएगा, हमारा सारा सिस्टम्स आ जाएगी, पूरी बॉडी सिस्टम से जितने भी वो सब आ जाएगा। माय फैमिली में हमारा फैमिली ट्री आ जाएगा। उसके बाद माइग्रेशन किस तरह से होता है, चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली में किस तरह से, न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, वो आता है, इसमें होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक पर से। देन आता है हमारा वर्क एंड प्ले, इसमें ऑक्यूपेशन बेस्ड पे आता है क्वेश्चंस, चाइल्ड लेबर पे आता है क्वेश्चन। उसके बाद डिफरेंट गेम्स होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स के गेम्स जो होते हैं, इंटरनेशनल गेम्स, नेशनल गेम्स, ये सब के रिलेटेड होता है। इंडिया का नेशनल गेम, इंडिया का गेम कौन सा है, उसके बाद क्रिकेट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, लाइकवाइज गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लांट्स एंड एनिमल्स, यू ऑल आर नो प्लांट साइकिल आएगा। उसके बाद सराउंडिंग प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स कौन कौन से है वो आएंगे हमारे यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है हमारा फूड में चला जाएगा, हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आएगा। उसके बाद स्टोरेज होता है, डिफरेंट टाइप का फूड किस तरह से स्टोर होता है वो आ जाएगा इसमें। न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, उसके बाद फूड डेफिशिएंसी आ जाएगा, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ये सब हमारा आ जाएगा फूड में। उसका शेल्टर, इट्स वेरी, ये इससे तो क्वेश्चन आता ही है, 2 to 3 क्वेश्चन इसमें से तुम्हें आना ही है। शेल्टर का नीड क्या है वो तो हमें पता ही है। उसके बाद शेल्टर में चला जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, शेल्टर में आ जाते हैं हर जगह के, हर स्टेट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस होते हैं, वो चला जाता है हमारा शेल्टर में। उसके बाद डिफरेंट एनिमल्स के भी शेल्टर होते हैं, एनिमल्स कौन से एनिमल्स किस टाइप के घर में रहना पसंद करते हैं वो भी आएगा इसके अंदर। फिर नेक्स्ट है हमारा एयर एंड वाटर, एयर से रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक कंपोनेंट्स ऑफ एयर आएगा। इसका प्रेशर, डिसीज स्प्रेड थ्रू एयर, ये सब आता है हमारा। पोल्यूशन आएगा, ये सब हमारा एयर एंड वाटर में आ जाएगा। नेक्स्ट इज अर्थ एंड दी
स्काई। नेक्स्ट हमारा अर्थ एंड स्काई, इसमें लैटिट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड ऑफ द अर्थ, मूवमेंट ऑफ अर्थ आ जाएगा हमारा। स्टैंडर्ड टाइम क्या है, अर्थ का स्टैंडर्ड टाइम क्या है वो आ जाएगा। उसके बाद है हमारा आर कंट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, लोकेशंस आएगी, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कौन सा जो है कंट्री में हमारे इंडिया से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस है वो आ सकता है। नेक्स्ट इज हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, हिस्ट्री डिफरेंट हिस्ट्रीज है इंडिया की वो आएगी। कल्चर ऑफ इंडिया लाइक डांस फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग हर स्टेट के अलग अलग डांस फॉर्म्स होते हैं वो आएगा। फूड के बारे में, हर स्टेट का एक फूड होता है वो आ सकता है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है हमारी फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ जाएगी, प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, नेशनल सिंबल्स आ जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाता है। बेसिकली सिंबल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, नेशनल बर्ड वगैरह भी क्वेश्चन आता है। नाउ पेपर 2 का सिलेबस है वो सेम ही रहेगा, CDP का भी सेम, उसमें CDP सेम होता है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ये सब सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस विल बी इन योर सब्जेक्ट में भी क्या चेंज होगा थोड़ा सा डिटेल में आ जाएगा। इट विल बी ऑफ लिटिल ऑफ अपर लेवल। तो साइंस में मेजरमेंट जाएगा, मेजरमेंट्स में जो आता है यूनिट्स डिफरेंट, दैट यू कैन जस्ट गो थ्रू, पॉज करके आप सब देख सकते हो। इसमें नेचुरल फिनोमेनन है, साउंड है, हीट है, मैकेनिक्स है, काइनेमेटिक्स है, डायनामिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, मैटर एक्सचेंजेस, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, लिविंग वर्ल्ड है, एनिमल वर्ल्ड है, प्लांट वर्ल्ड है, माइक्रोब्स है और आर इन्वायरमेंट। रिसेंट ट्रेंड्स इन बायोलॉजी में जो भी रिसेंट हुए हैं यही था हमारा आज का सेशन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, होप दैट यू अंडरस्टूड दैट व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी नाउ। सो इसके प्रॉपर ही स्टडी करना है। सीटेट का नोटिस आया है कि अब सीटेट ऑनलाइन होने वाला है, सून दे विल रिलीज द नोटिफिकेशन एज वेल। सो be prepare everyone, today's video was only that much. Next video soon will come with the next video in which we'll discuss some important questions जो आते ही एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। we'll discuss those questions. So now thank you everyone, don't forget to like, share and subscribe. Please share with all those who are from the teaching field. Okay, thank you.